Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students. Welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. Viewers, today we are going to discuss some properties of equality, and these properties are included in the syllabus or course of class 9th mathematics. So let's get started. The properties of equality of real numbers. Now students, what do we mean by equality? If there is a sign of equality between two expressions, let us suppose हम कहते हैं कि x plus 2 is equal to 5. Now here is the sign of equality. So this sign of equality shows equation. What it does mean? This shows an equation. So this is what equality is. And the real numbers, the set of real number, it is denoted by R. And the real numbers are those numbers whose square root is always positive. Whenever we talk about the real numbers, so it means that in the radical sign we must have a positive number. Let us suppose 25 है, तो 25 जो है this is a positive number और उसका square root आपके पास plus minus 5 आ जाएगा, ठीक है. But अगर there is a negative number like under root minus 1, तो this is an imaginary number और इसकी वैल्यू हमें पता है कि आयोटा के बराबर होती है या आयोटा की वैल्यू under root minus 1 के बराबर होती है. So the properties which we are going to discuss, number one is reflex property or reflexive property. Reflex property or reflexive property, ठीक है. ये प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट्स कि एवरी रियल नंबर is equal to itself. Let us suppose अगर 5 है तो 5 is only equal to itself, that is 5. 5 is never equal to 6. 5 is never equal to any other number. So it is equal to itself. So this is reflexive property or reflex property. That is A is always equal to A. For all, ये उल्टा A जो है ये सिंबल है किसका? For all A belongs to, ये सिंबल भी आपको पता है किसका है? Belongs to the set of real number and it is denoted by R. Next property is symmetric property. Symmetric property क्या है स्टूडेंट्स? Let us suppose, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके पास फिजिकल बैलेंस आम दुकानों के ऊपर मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ अशिया जो है क्या करते हैं, उसकी नाप तोल करते हैं, उसकी मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं. अगर आपके पास जो है एक तरफ 1 किलो का बॉट रखा हुआ है और दूसरी तरफ आपने 1 kg शुगर उसके अंदर जो है मैयर की हुई है, तो बोथ पेन्स आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों जो है वो क्या हैं? सेम लेवल के ऊपर हैं, ठीक है. अगर आप इस फिजिकल बैलेंस को रिवर्स कर देते हैं, यानी बॉट वाली साइड इस तरफ कर देते हैं और जिस तरफ आपने शुगर को पैन में रखा हुआ है उस साइड को आप इस तरफ कर देते हैं, तो इक्वालिटी डज नॉट चेंज. इक्वालिटी जो है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है. बेशक आप फिजिकल जो है बैलेंस की पोजीशन या उसके पैन्स की लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट कर दें, तो इक्वालिटी स्टिल क्या होती है? मेंटेन होती है. इट डजंट अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ द इक्वालिटी. सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, if A is equal to B, this implies, this symbol stands for this implies, यानी it means, this implies B is equal to A. आप देख सकते हैं कि right hand side is shifted to the left hand side and left hand side is shifted to the right hand side. Equality is maintained, still maintained. मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है. For all A B belongs to R. आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी दो रियल नंबर्स ले सकते हैं, उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी क्या होती है? होल्ड होती है. Now the next property जो हम very often use करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, it is transitive property. Transitive property क्या है? Transitive property है if A is equal to B and B is equal to C, this implies that A is equal to C. That is, if one is equal to the first element A is equal to second element B and second element B is equal to the third element C, then the first and third both are equal. बिल्कुल सिंपल सी बात है. अगर आप कहते हैं कि let us suppose अगर आपके पास A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू भी है 2 और C की वैल्यू भी है 2, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि A is equal to B. Similarly आप कह सकते हैं कि B is equal to C. So this means that कि फर्स्ट की वैल्यू और थर्ड की वैल्यू भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक हो गया. So students, for all A, B, C belongs to R,
द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, hence a इज इक्वल टू द थर्ड वन c. दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल भी करते हैं. लेट अस सपोज मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b is also equal to 2, that is right hand side is equal to right hand side, then left is equal to left. ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की एक शेप है कि आप यहाँ से दोनों इक्वेशंस की अगर दो साइड आपको सेम नजर आ रही हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी. ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म है जहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं. डिफरेंट हम जो है वो क्वेश्चंस के अंदर और थ्योरम्स के अंदर भी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे. Now the next property is additive property. नाम से जाहिर है additive stands for addition, and what does this statement, what does this property states? If a is equal to b, let us suppose if two numbers a is equal to b आपस में equal हैं, this implies is अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन के सेम नंबर ऐड कर दें, कोई रियल नंबर है, अगर provided that कि this equality is maintained, then same number can be added on the either side of the equation. इसकी भी बड़ी सिंपल सी मिसाल है. अगर आप दुकान के ऊपर जाते हैं, एक शॉपकीपर को बोलते हैं कि भाई मुझे 1 kg शुगर दे दें, ठीक है, वो आपके लिए मैयर कर देता है, वो आपको नाप के पैमाइश करके आपको शुगर दे देता है. आपका इरादा अचानक चेंज हो जाता है, आप कहते हैं नहीं भाई 3 किलो दे दो, शुगर ज़्यादा कर दो, 3 किलो चाहिए. तो अब क्या करता है वो, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पैन जो बाट वाली जगह होती है वहां पर क्या करता है 2 kg और ऐड कर देता है, और शुगर आपको उठा के नहीं देता, क्योंकि दूसरी तरफ उसने 2 किलो चीनी अभी और ऐड नहीं की. अगर इस तरफ उसने बाट वाली साइड पर 2 kg ऐड किया है तो वो दूसरी तरफ भी 2 किलो मजीद शुगर बैग के अंदर डालेगा, तब जाके इक्वालिटी मेंटेन होगी और तब जाके आप उससे शुगर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे. सो just like that, if c is added on the left hand side, then same number will be added to the right hand side, and this is what, this is additive property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से पहले मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस करता हूं, बिकॉज एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोथ आर रिवर्स प्रॉपर्टीज टू ईच अदर. हाउ? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहती है कि फॉर ऑल a b c belongs to r, any three numbers which are taken from the set of real numbers, a plus c, if a plus c is equal to b plus c, this implies that a is equal to c. आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से c और c क्या हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया. लेट अस सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है x plus 5 is equal to y plus 5, तो आप इसे लिख सकते हैं x is equal to y, बिकॉज 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. ये इस तरह भी कैंसिल होगा स्टूडेंट्स कि इफ वी ऐड -5 ऑन बोथ साइड, द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5 इज -5, तो 5 कैंसिल होकर आपके पास अगेन x इज इक्वल टू y बचता है. सो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज द रिवर्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी. वहां पर हम कहते हैं कि सेम नंबर कैन बी, सेम रियल नंबर can be added on both side of the equality, और यहाँ पे हम कहते हैं कि if there is a same number which is added on both side of the equality, it can be cancelled from both sides. So this is what cancellation property with respect to addition is. Now the next property is multiplicative property. Multiplicative mean multiplication से ज़ाहिर ये word लिया हुआ है. If a is equal to b, if there is an equation, अगर आपके पास कोई equation है a is equal to b, this implies is AC is equal to BC. We know that if there is no sign, no operation is being shown between two variables, then it is confirmed, then it is understood that it is multiplication. So A और C के बीच में ना मैंने कोई डॉट डाला है ना क्रॉस डाला है, but understood है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. So C is multiplied on both sides of the equality and equality doesn't change. Let us suppose अगर आप कहते हैं कि 4 is equal to 4, according to this property, reflexive property, 4 is equal to 4, then अगर मैं इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को और इधर 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, तो इक्वालिटी इज मेंटेन्ड, कोई चेंज नहीं आई. इस तरफ भी 12 आएगा प्रोडक्ट, इस तरफ भी 12 आएगा, स्टिल इक्वेशन इज मेंटेन्ड. So this is multiplicative property in which we can multiply the same number, positive, negative, any real number can be multiplied on the both side of the equality. Equality doesn't
change or false. So next property is cancellation property with respect to multiplication. This is the reverse property of multiplicative property. Multiplicative property में हम सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कैंसलेशन नाम से जाहिर है कैंसिल करना. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका रिवर्स है कि जिसमें हम अगर देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वेशन के सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ से उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपके पास लिखा हुआ है 4x is equal to 4y, so 4 is multiplied, same number 4 is multiplied on the both side. अगर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना. तो 4 कैंसिल होके x is equal to y, just like a is equal to b. इसी तरह से c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो a is equal to b रह जाएगा, जिससे यहाँ पर x is equal to y रह गया है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज एंडेड. ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कोर्सेज के अंदर, आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, थ्योरम्स के अंदर इनका रेफरेंस जो है बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, जो कि डेफिनेटली 9th क्लास से ही रिलेटेड कोई वीडियो होगी. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.